Welcome you all in online classes session. Let me start today to talk about topic of second paper, part one, sexual transmitted diseases, mainly Updans and its management in Ayurveda. First of all, we have to know what is STD, sexual transmitted disease. Is defined as transmitted infection transmitted through sexual contact with an infected individuals, sometimes called sexual transmitted infection. It can be transmitted many different ways, but most can be passage by vaginal sex, anal sex, oral sex, skin to skin contact, and infected mother to child. वाई नीड इसको जानना क्यों ज़रूरी है और ये क्योरेबल है कि नहीं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर देखा जाए तो कैन नॉट रिवर्स द लॉन्ग टर्म डैमेज ट्रीटमेंट, कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मैनी पीपल लिविंग विथ वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, बट देयर इज नो क्योर. जैसे कि डिसीज़ का ऑनसेट हो और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, आगे जाके ये जो डिसीज़ हैं, जो पेनल रिलेटेड या तो वजाइनल रिलेटेड कंडीशंस होती है, इसमें स्वेलिंग, पस एक्सेट्रा, वो वर्स्ट कंडीशन करती हैं. और दैट्स वाई इट्स नीड रियली immediate treatment. There are so many times due to social stigma and due to that people are facing or hiding these conditions and getting into troubles more worst. That's why it is need to treat these disorders as early as possible. And also मॉडर्न, जैसे कि मैंने अभी ही हमने चर्चा करी कि देयर इज़ नो क्योर, बट there in Ayurveda there is lots of hope for this type of diseases, for the quality of life improvement and for the prevention and prophylaxis of this type of diseases. In Ayurveda classics, Acharya described full description of Sansargaj Rogas in Sushruti Darshan 4 in Kushta chapter. There Acharya has quoted that Prasangach Gata Sansargat. So this is the first description of there. Also, Acharya has given says separate chapter of Updans in Sushruti Darshan 12 chapter, and also given the treatment in Chikitsasan chapter. Also in Charak Samhita Chikitsasan 30 chapter, Acharya given the description of Updans Lakshan under the Dvajbhangaj Klebya. Here Acharya mentioned that Spotascha Tivra Jayante Ling Pako Masa Vruddhi Bhavistcha Vranakshi Prabhatyapi. Acharya mentioned Updans as lesion or penile lesion, mainly ring of glands of penis. Now coming to Samprapti of निदान with Samprapti of this disease. तो निदान में आचार्य ने जो डिस्क्राइब किए हैं, जो क्लासिक्स में मैंने लिए, तो एक्सेसिव कोइटल एक्टिविटी, ब्रह्मचर्य, अति ब्रह्मचारिणी स्त्री से सेक्सुअल कांटेक्ट रखना, चिरोत्सृष्टा जो लंबे अरसे से डिसीज अफेक्टेड हो, ऐसी रजस्वला मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो जिसको, ऐसी फीमेल, दीर्घ रोमा, कर्कश रोमा, संकीर्ण रोमा, ड्यू टू दिस इज द अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ द वजाइनल एरिया और पेनाइल एरिया. निगुड रोमा, अल्प द्वारम, narrowness of vaginal tract. It's also cause this type of disease due to difficulty in coital activity, either dyspareunia, and it can be injury to penile area. Female genital hygiene related factors like due to not proper washing the vaginal part or not care of vaginal part.
male genital area. Also, this type not carrying the proper uh, hygienic activity. औपीडन शुक्रवेग विधारण मीन्स मेनली here is शुक्रवेग धारण आफ्टर कोइटल एक्टिविटी, ठीक से जो जेनेटल एरिया पार्ट है उसको होस्ट ना करना, या तो एक्सेसिव मास्टरबेशन एक्टिविटी एक्सेट्रा. अभिघातज इंजरी टू पेनाइल, नारी मत्यर्थ उपसेव्यमान, एक्सेसिव कोइटल एक्टिविटी, दिस ऑल्सो लीड कैन टू इंजरी. रज दसन विष सुख निपात, एनी टाइप ऑफ इंजरी टू पेनाइल एरिया. चतुर्थी गमन, कोइटल एक्टिविटी अदर देन द फीमेल पार्टनर. ऑल दिस फैक्टर लीड्स टू दोष प्रकोप, मेनली वात पित्त कफ. क्षते अक्षते वा शैथम उपजायते, वहाँ पे सूजन के साथ या तो विदाउट सूजन, सॉरी लीजन के साथ या तो विदाउट लीजन सूजन होती है. और उसके बाद उपदंश डिसीज होता है. टाइप ऑफ उपदंश मेंशन्ड इन आयुर्वेदा क्लासेस, मेनली वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड संधिपातज. 5 टाइप्स इज देयर. वातज सिम्टम्स लाइक पारुष्य, ड्राइनेस इज देयर. त्वक परिस्फुटनम, जो स्किन होगी वो उसमें इसका क्रैक्स हो गए. स्तब्ध में दृढ़ता, पुरुषोफ्ता, स्वेलिंग ओवर द पेनाइल एरिया, विविधाश्च वर्तमान, पेनाइल रीजन में पेन होगा. पित्त ज्वर, फीवर, स्वयथु स्वेलिंग, पकोदुम्बर शंकास, तीव्र दाह, क्षिप्रपाक. उसमें पाक होने के बाद जो उदुम्बर फल पका हुआ है उसमें से जो ब्राउनिश कलर का जो पस यानी लिक्विड निकलता है, वैसे पस की उत्पत्ति होती है. कफज, श्वेतो गंडुमान, कठिन स्निग्ध, श्लेष्म वेदनाश्च. ड्यू टू कफज देयर इज द स्वेलिंग विथ इचिंग. जो स्वेलिंग होगा वो टच करने में थोड़ा हार्ड होगा एंड वाइटिश कलर का डिस्चार्ज होगा. रक्तज, ब्लैक स्पॉट, एक्सेसिव ब्लीडिंग इज देयर. ऑल्सो पित्तज में जो लिंक दिए है, पित्तज में जो सिम्टम्स दिए वो सारे हो गए, इंक्लूडिंग फीवर, सोस, एंड दिस इज द यापियर डिसीज. रक्तज उपदंश. संधिपातज, सर्वजय सर्वलिंगश्च दर्शनम. सारे वात पित्त कफ के जो भी सिम्टम्स है सब आएंगे. इसके उपरांत औदरणम, सेफ्सा, तो पेनाइल रीजन में क्रैक्स हो गए. कृमि प्रादुर्भाव, मरणम जेति, उसमें मानी पेनाइल एरिया में जो सड़न हो के आगे जाके उसमें डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन. उपदंश ट्रीटमेंट, मेनली संशोधन, लेपन, परिसेक, रक्त मोक्षण, ये सारी क्रियाएं इम्पोर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट के लिए. तो एक के बाद हम देखें अगर तो उपदंश से सुसाध्य सुस्निग्ध सिन्न से देहना, जो साध्य उपदंश है उसमें मानी वात पित्त कफ तीनों है, उसमें पहले तो स्नेह संशोधन करना है. उसके बाद जो शिरावेथ मेड्रा के मध्य की मानी जो पेनाइल एरिया की जो मिडल कैवर्नस की जो वेन है उसमें हल्का सा ब्लड लेडिंग थेरापी करनी है, या इधर उसमें लीच थेरापी कर सकते हैं. अगर ऊर्ध्वाधर या तो दोष मात्रा से अधिक है तो स्नेह संशोधन करवा के विरेचन देना है. लेकिन अगर रोगी दुर्बल है तो उनको शोधन न करवा के निरुबस्ती प्रयुक्त की जा सकती है. दोष वाइज अगर देखा हम लोकल एप्लीकेशन में क्या क्या दे सकते हैं, तो वातज में प्रपौंड्रिक, यष्टाव्य, कमल, वर्षाभूपुनवा, कुष्ठ, दारुहरिद्रा, सरल, अग्रु, रासना आदि जो द्रव्य वातना से दिए है उसके लेप करने हैं, मेनली घृत के साथ. गैरिकांजन, यष्टाव्य, सारिवा, उसीर, पद्मक, चंदन, उत्पल, ये जो सारे पित्त सामक द्रव्य हैं उसका घृत के साथ लेप करना है.
यष्टि मधु प्रलेप कर सकते हैं। कफज उपदंश में सेचियत घृत क्षीर शर्करा, घी, मिल्क, शर्करा और मधुदक, इससे परिसेक करना है। शीत कसाई पंचवल्कल वट आदि जो भी है, वट, साल, अश्वकर्ण, अजकर्ण आदि का शीत कसाई का परिसेक करना है और उसे वॉश करना है यानी पेनाइल एरिया को। डोज वाइज लेपन, दोष वाइज लेपन में अगर त्रिदोषज हैं, तीनों दोष नूल है, तो दुष्ट रणविधि जो सुश्रुत में दुष्ट रणविधि बताई गई है वो करनी है। अगर उसमें सड़न हो जाती है कुंथितम, तो झमवष्ट अस्त्र से अग्निकर्म करना है। उसके बाद सम्यक दग्ध हो जाए, उसके बाद वहाँ मधु सर्पी रोपण के लिए मधु और सर्पी का लेपन करना है। इसके अलावा रण विसर्पनाशक जो योग दिए हैं, स्वर्जिका, स्फटिका, तुथ, काशिश, शिलाजित, रसांजन, मनशिला आदि का चूर्ण मिक्स करके लेपन कर सकते हैं। प्रलेप में तिल, सर्पी और मधुयुक्त प्रलेप कर सकते हैं। व्रण प्रक्षालन में मेनली जो करवीर पत्र दिए हैं, आरोग्य पत्र दिए हैं, अर्क पत्र दिए हैं, उसके क्वाथ से प्रक्षालन करना है क्लीननेस के लिए। उसके बाद मधुयुक्त चूर्ण से अवचूर्णन करना है। उसमें है स्फटिका, गैरिक, काशिश, सैंधव, रसांजन, हरताल, मनशिला, दारुहृद्रा, हरेणु आदि द्रव्यों को मिक्स करके पाउडर करके उसका रोपण के लिए अवचूर्णन करना है। उसके बाद व्रण प्रक्षालन के लिए अलग अलग द्रव्य दिए हैं, जैसे कि पत्र तो जम्बू, नींब, करवीर, उसके पत्र का काढ़ा बना के उसका व्रण प्रक्षालन करना है। सल्लकी, बदर, बिल्व, पलास आदि क्षीरी द्रव्य जो भी है उसके आदि की त्वक उससे और त्रिफला क्वाथ से जो व्रण है उसका प्रक्षालन करना है, मानी हाइजेनिक कंडीशन उससे क्रिएट होगी। थैंक यू।